So good morning friends, have a nice day. The last lecture we studied about solid state, its various features, its various properties, various forms and various packings, some defects also, each and everything we studied. Whatever the things were in the syllabus of class 12 CBSE of solid state, we studied. And it's my humble request, in the most nice, interesting way, I have explained that chapter. Now your turn is to prepare nice notes on that. And now today we will start a second chapter of the CBSE, that is solution. Friends, whenever the terms solution comes, I should start from its very basics. That is, we know matter. Matter can be classified in different way actually. In the very first chapter, I told that the matter is classified in the form of solid, liquid or gas. Before anything, I want to say what actually is matter. Matter means anything that has some space, that occupies some space and have some mass. That is matter. On the basis of some constituent particles packing, we can classify it as solid, liquid or gas. Solid means what? The constituent particles are packed very close. Liquid means what? They are a bit loose. Gas means what? The constant particles are more loosely attached with one another. Fine. The another way of classification is also there. Matter can be classified as mixture or pure substance. See friends, can be possibility that whatever the matter is there, whether it is solid, liquid or gas, if that matter, if that material is made up of just one kind of things, that will be pure. It can be in the form of any particular element or it can be in form of compound. Let's take an example. If I have taken gold, pure gold if I have taken, means if you analyze it very carefully, it will contain all gold atoms. So it is a pure substance made up of gold element. Second thing, suppose H2O. I have taken pure distilled water. If you analyze very carefully, the every molecule will be what? H2O. Nothing more, nothing less. Now, mixture means हिंदी में उसको मिलावट कहते हैं. जहां पे दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं, वो हमारा मिक्सचर हो गया. लेकिन मिलने के बाद अगर वो अच्छे से घुल मिल जाती हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर. अगर अच्छे से नहीं मिलती है तो क्या कहते हैं? इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. होमोजीनियस मिक्सचर, इट गिव राइज टू अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, बट इफ इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट गिव राइज टू कोलाइड सोल्यूशन और सस्पेंशन. ये कैसे पता करते हैं? कोई कोलाइड सोल्यूशन होगा या सस्पेंशन होगा या सोल्यूशन होगा? दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं. हमने चीनी को लिया. चीनी को अगर आप पानी में आप डाल देंगे तो चीनी को पानी में डालने के बाद क्या होता है? घुलते हमें दिखता ही नहीं कि चीनी कहाँ चली गई. आप सॉल्ट को जो है पानी में डाल दीजिए, उसको ऐसे थोड़ी देर के लिए स्टर कर दीजिए, मिक्सअप कर दीजिए, तो दिखता ही नहीं है कि नमक कहाँ चला गया. क्या आपको लगता है कि नमक पूरा का पूरा एवापोरेट होकर कहीं चला गया या डिसअपियर हो गया? कोई जादू सा कहीं कोई डिसअपियर तो नहीं हुआ. होता क्या है? जस्ट थिंक ओवर. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, डिसॉल्व होते होते इतने छोटे हो जाते हैं कि चारों तरफ उस कंटेनर में, एक ग्लास के कंटेनर में आपने एक चम्मच जो है एक चम्मच नमक डाल दिया. नमक जो है डिसॉल्व होते इतना छोटा पार्टिकल हो गया कि चारों तरफ हमें पानी ही दिखाई दे रहा है और हमें नमक के पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं. जैसे कि आप लोग आप मान लीजिए बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है, आपके, और आप जो है फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होकर के जो है पूरे अपने गैदरिंग को जो है, अपने क्राउड को, अपने सपोर्टर्स को जो कुछ एड्रेस कर रहे हैं, तो चारों तरफ क्या दिखाई देगा? सारी तरफ लोग दिखाई देंगे, आपके सपोर्टर्स दिखाई देंगे. अगर जमीन पे वहीं कहीं अगर चींटी अगर बैठी आपका एड्रेसिंग सुन रही है, तो चींटी आपको वहां से दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी. क्यों? क्योंकि चारों तरफ क्राउड है, बड़े बड़े लोग हैं, छोटी चीज नहीं दिखाई देगी. ऐसा ही केस रियलिस्टिक होता है जब सॉल्ट को डिसॉल्व किया जाता है पानी में. चारों तरफ पानी ही दिखाई देता है, वो नमक के जो छोटे छोटे टुकड़े
जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। वो केस होता है हमारा किसका? सोल्यूशन का। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर मीन्स व्हाट? 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के। आपको एक चीज बता दें बिफोर गोइंग टू मोर फर्दर, व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट? सबसे सीधी परिभाषा में, इन द मोस्ट इजी डिफिनीशन, जिस चीज में जिसको घोलते हैं तो इसको कहा जाएगा सॉल्वेंट, और जो घोलने जा रहे हैं उसको कहेंगे सॉल्यूट। और अनदर वे, अगर जो चीज ज्यादा अमाउंट में है उसको कहेंगे सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में है उसको कहते हैं सॉल्यूट। आपने एक ग्लास पानी लिया था और 1 चम्मच नमक लिया था, कौन ज्यादा अमाउंट में है? पानी, तो पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया। क्या डिसॉल्व करने जा रहे हैं? नमक, तो नमक हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट। द थिंग प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इज योर सॉल्यूट। प्लीज रिमेंबर ऑलवेज, द थिंग प्रेजेंट इन लेस quantity is solute, more quantity is known as what? Solvent, and the mixture of the two gives you solution. And one more condition, homogeneous. Homogeneous means the concentration or the composition throughout the bulk is same throughout. यहाँ पे ऐसा सेम हर जगह नहीं होता है, कोलाइडल में या सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता है। पहली बात ये बता दें कोलाइडल की डिफिनेशन क्या होती है। जब ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स, जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आते हैं तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। और जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स 1000 नैनोमीटर से भी बड़े हो जाते हैं तब हो जाता है सस्पेंशन। सस्पेंशन को आप खुली आंखों से भी देख सकते हैं। चॉक पाउडर लीजिए, पानी में डिसॉल्व कर दीजिए, क्या होगा? चॉक पार्टिकल्स आप खुली आंखों से भी देख सकते हैं कि बॉटम, ग्लास के बॉटम पे हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है मिल्क एंड वाटर। ठीक है, अब आपको हम ये बता दें, ये तुम्हारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मैटर का इन अनदर फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ another thing I want to tell you by another flowchart diagram. So friends, I want to mention some other small basics of the solution. देखिए, solution जिसको हमने कहा मिक्सचर या मिश्रण कह लीजिए, हो सकता है कि जैसे मान लीजिए पानी है, पानी में हम क्या करते हैं कि चीनी डाल देते हैं। आप लोग को पता है गर्मी के सीजन में जो है बहुत ही एक कॉमन ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है? आपने सुना होगा, पानी में थोड़ा नमक डाल दीजिए, थोड़ा चीनी डाल दीजिए, थोड़ा नींबू डाल दीजिए। कोई भी अगर गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज द देसी ग्लूकोज, इन शॉर्ट यू कैन से, इट विल इंस्टेंटली गिव यू एनर्जी। फाइन, अब मुझे ये बताइए इस पानी में क्या क्या मिलाया गया? शुगर, salt and the citric acid or the lemon juice you can say. So friends, what I want to say is there are 4 components actually. One is the solvent, water, and the 3 other solutes. Solution can be binary solution. I want to explain you that solution can be binary solution, ternary solution or quaternary solution, etc. All depends upon how many components are present in the solution. हमारे उस मिश्रण में कितनी चीजें हैं मौजूद। अगर 2 चीज मौजूद हैं तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? बाइनरी। पानी में हमने बस नमक डाल दिया, कितने कंपोनेंट्स हैं? 2, एक पानी हो गया, एक नमक हो गया, हमारा बाइनरी सोल्यूशन हो गया। पानी है और चीनी है, कितने कंपोनेंट्स हो गए? 2, इट्स एग्जांपल ऑफ बाइनरी सोल्यूशन। वैसे हमारा टर्नरी सोल्यूशन, क्वाटर्नरी सोल्यूशन करके होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको एक चीज बेसिक बता दें कि कोई भी चीज किसी भी चीज में कैसे डिसॉल्व होगी। देखिए, हमेशा जो पोलर सॉल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सॉल्यूट जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। आपको एक एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करते हैं। कभी आप आसमान में देखते होंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। देयर इज एन इंग्लिश प्रोवर्ब, बर्ड्स ऑफ सिमिलर फेदर्स दे फ्लॉक टुगेदर, दे फ्लाई टुगेदर। एक तरह के पक्षी एक साथ उड़ते हैं।
तोतों का जो है, पैरट्स का जो एक झुंड होता है, पैरट्स के साथ सारे पैरट्स ही होते हैं, उनके साथ एक भी क्रो नहीं होता है, राइट। उसी तरह से जो पोलर सॉल्वेंट है वो पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करता है, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है। एग्जाम्पल, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट बिकॉज वाटर इज मेड अप ऑफ व्हाट, H+ एंड OH-। देखिए यहाँ H+ हो गया, क्या है वो, OH- है, तो प्लस और माइनस पोल्स हो गया। तो ये जो पोलर सॉल्यूट है, ये जो पोलर सॉल्वेंट है, इट इनवाइट्स द पोलर सॉल्यूट, और यही कारण है कि NaCl जो है आराम से इसमें डिसॉल्व हो जाता है। सो नॉन पोलर सॉल्यूट देख लीजिए, जैसे कि हमारा बेंजीन हो गया, टॉलिन हो गया, और कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे N-हेक्सेन मतलब इट इज़ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, वो सब उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आपको एक और फ्लो चार्ट हम बनाने जा रहे हैं, और उस फ्लो चार्ट से हम और भी चीज़ें आपको हम समझाएंगे। So the flow chart is before you, that is the solution can be 3 types, gaseous solution, liquid solution and solid solution। दोस्तों एक चीज़ देखिए, जैसे होता है ना कि इसको गैसियस सोल्यूशन क्यों कहते हैं, इसको लिक्विड सोल्यूशन क्यों कहते हैं, इसको सॉलिड सोल्यूशन क्यों कहते हैं, याद रखिएगा सॉल्वेंट क्या है। अगर हमारा सॉल्वेंट गैस है और गैस में आपने अदर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिसॉल्व किया है, देयर आर बेसिक 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन आपने सॉल्वेंट क्या लिया है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट की डिफिनीशन जस्ट 2 मिनट पहले मैंने डिस्कस की है। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज सॉल्वेंट, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज सॉल्यूट। और अगर हमारा सॉल्वेंट क्या है, गैस है, तो उसमें जो भी अदर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम डिसॉल्व करेंगे तो वो हमारा सोल्यूशन जो बनेगा वो होगा गैसियस सोल्यूशन। मीन्स इन दिस केस आवर सॉल्वेंट इज गैस एंड द सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक एग्जांपल देखिए बाबू, व्हेन द सॉल्यूट इज सॉलिड एंड इट इज प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट ऑफ गैस, दैट इज ऑब्जर्व डेली। डस्ट, स्मोक, सुबह में जब खिड़की के दरीचे से सूर्य की किरणें आती हैं तो आप देखते होंगे थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी जो है धूल के कण जो है हमें दिखाई देते हैं, राइट। वो जो धूल के कण हमें सिर्फ सूर्य की रोशनी से ही दिखाई देते हैं, असल में होते तो हैं। तो व्हाट इज डस्ट पार्टिकल, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ डस्ट पार्टिकल, सॉलिड, एंड इट इज प्रेजेंट इन द गैस। गैस इज इन लार्ज अमाउंट and small amount is what, solid. So it is example of what, a gaseous solution in which solid is your solute and the solvent is gas. Another example is water vapor, humidity। तो वहाँ पे क्या होता है, H2O is present in the environment, तो गैस हमारा ज़्यादा अमाउंट में है, जो वाटर है कम अमाउंट में है। सो वाटर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और गैस हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। वैसे ही हमारा जो है एयर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। द होल एयर इज मेड अप ऑफ व्हाट, मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन कैन बी कंसीडर्ड एज वन सॉल्यूट इन द एयर। ठीक है, तो ये हमारा रहा गैसियस सोल्यूशन के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। अब आते हैं लिक्विड सोल्यूशन, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में पढ़ना है, समझना है। आइए देखते हैं। लिक्विड सोल्यूशन कहने के बाद आपको इतना समझ में आ गया कि हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, और इसी लिक्विड सॉल्वेंट में हम सॉलिड, लिक्विड या गैस को बारी बारी डिसॉल्व करने जा रहे हैं। अगर हमने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, जो कि रोज करते हैं, सो द बेस्ट एग्जांपल इज द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर और द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। बेस्ट एग्जांपल you daily do. Now second one is liquid in liquid. When the liquid, suppose example ethanol or any kind of alcohol you are mixing in water, but you have to remember one thing, that if my solvent is what, solvent is water, suppose solvent is water, it is present in large amount, so alcohol should be what, in less amount। ठीक है, एक और चीज बता दें,
अगर आप इन सारी प्रक्रिया में अगर पानी को अगर आप सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हैं तो जो भी सोल्यूशन हमें मिलता है उसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। देयर आर सो मेनी सॉल्वेंट्स, आप लोगों को अभी तक ज़्यादा नहीं पता होगा मे बी, लेकिन आपको बता दें हज़ारों हज़ारों सॉल्वेंट होते हैं। पानी के अलावा भी ढेर सारे सॉल्वेंट होते हैं जिनमें सॉल्ट को डिसॉल्व किया जाता है और ढेर सारे रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। लेकिन अगर हमारा सॉल्वेंट पानी यूज हो रहा है तो उस सोल्यूशन को क्या कहेंगे, हम एक्वस सोल्यूशन कहेंगे, अदरवाइज उसको नॉन एक्वस सोल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, तो एथेनॉल इन वाटर इज एग्जांपल ऑफ द सोल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड, एंड अनदर थिंग इज व्हाट, CO2 इन लिक्विड। कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, तो जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन होती है तो क्या होता है, जो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है अंदर वो बाहर निकलने लगती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है लिक्विड में, इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, गैस इन लिक्विड। लास्ट पार्ट इज आवर सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन का मतलब ये कि यहां पे हमारा सॉलिड इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। आई विल एक्सप्लेन दीज ऑल्सो वन बाई वन। सी फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि एलॉय है, जैसे कि होता है ना ब्रॉन्ज, डिफरेंट काइंड ऑफ एलॉयज आर देयर। तो एलॉयज कैसे बनते हैं, आपको हमने एक लेक्चर में समझाया था कि आयरन जो कि देखने में क्या है, इट इज अ सॉलिड, इट कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म ऑल्सो, इट कैन एग्जिस्ट इन गैस फॉर्म ऑल्सो। दुनिया में मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स। आई एम टेलिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स, not all of the things, and it all depends upon the temperature and pressure at which these things are kept actually। तो होता क्या है कि अगर एक और दो मेटल्स को इतना हीट किया जाए कि दोनों के दोनों मेल्ट होकर के मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, तो उस मोल्टेन फॉर्म में फिर दोनों को जो है एक प्रॉपर रेशियो में, प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाएगा। मिक्स करने के बाद फिर उसको ग्रेजुअल कूल किया जाएगा, तो जो बनेगा उसको कहते हैं एलॉयज। जेम्स भी कुछ कुछ उसी तरह से होते हैं। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड सोल्यूशन इन विच सॉलिड इज सॉल्यूट एंड सॉलिड इज व्हाट, सॉल्वेंट ऑल्सो। नाउ व्हेन लिक्विड इज प्रेजेंट as a solute in the solid solvent, so the best example is mercury in the gold. Mercury we all of us know it is a liquid, it is in the liquid form. When you keep this thing in gold for certain reactions, it will be example of the liquid in solid. Last but not the least is adsorption of the gases actually। अच्छा, अभी मर्क्यूरी से मुझे याद आया, एक चीज आप लोग को बताना चाहते हैं। वाई इन द थर्मोमीटर ओनली मर्क्यूरी इज यूज, कैन एनीवन टेल? इन थर्मोमीटर मर्क्यूरी इज यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, वाई? सो फ्रेंड्स, नाउ द आंसर वुड ऑल्सो बी सर्कुलेटिंग इन योर माइंड इज दैट मर्क्यूरी जो ग्लास ट्यूब्स होता है उनसे चिपकती नहीं है ना। इट इज नॉन स्टिकी टू द ग्लास सर्फेसेस और एनी काइंड ऑफ सर्फेस, किसी से वो चिपकती नहीं है, और इट इज सेंसिटिव टू द टेम्परेचर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट it does not freezes very easily at the very less temperature, and most important it has a very high boiling point। तो ज़्यादा काफ़ी टेम्परेचर, काफ़ी हाई टेम्परेचर और काफ़ी लो टेम्परेचर तक वो लिक्विड स्टेट में ही रहती है, कोई उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, वो इनर्ट फॉर्म में रहता है। जैसे गोल्ड जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता, प्लेटिनम नहीं रिएक्ट करता किसी से, वैसे मर्क्यूरी भी किसी से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और किसी से चिपकता भी नहीं है। स्पेशली जब उसको ग्लास सर्फेसेस में रखते हैं तो टेम्परेचर से वो सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर के हिसाब से वो राइज करता है, बिना किसी के चिपके, जितना टेम्परेचर है उतना वो राइज करता है, एवापोरेट भी नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं। तो मर्क्यूरी इन द गोल्ड इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, द सॉलिड सोल्यूशन इन विच लिक्विड इज एक्टिंग, लिक्विड मर्क्यूरी इज एक्टिंग एज अ सॉल्यूट in the solvent of gold। Now last is your what, adsorption of hydrogen in the palladium। My dear friends, जैसे कि आपके एग्जाम्पल बताएं, कभी कभी कंडेंसेशन फिनोमिना आप लोग जानते होंगे। जैसे कि आप बर्फ़ का पानी लाएं और बर्फ़ का पानी जो है बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी लाएं ग्लास में और रख दें आप,
तो आप पाएंगे कि क्या होता है, जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में होते हैं वो उस ठंडे ग्लास सरफेस में कांटेक्ट में आने के बाद आफ्टर सब्लिमेशन दे फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास. फाइन. On the surface of glass, remember, water vapor which was present in the form of gas, now it condenses in the form of liquid and stick on the surface of glass. वैसे ही पैलेडियम एक मेटल होता है. पैलेडियम के ऊपर जो हाइड्रोजन गैसेज होती हैं वो लिक्विफाई होकर के आके बैठ जाती हैं. इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन. देखिए, एब्जॉर्प्शन का मतलब जैसे बिस्किट लिया आपने, बिस्किट को आप पानी में से चाय में आप डिप करके खाते हैं, तो बिस्किट क्या होता है, यूनिफॉर्मली पूरा चाय उसमें सोक हो जाता है, ठीक है ना, थ्रू आउट द बिस्किट, थ्रू आउट द होल एंटायर बॉडी ऑफ द बिस्किट द टी इज एब्जॉर्ब्ड. लेकिन एडजॉर्प्शन में क्या होता है, एडजॉर्प्शन में सिर्फ सरफेस पे होता है, ठीक है. जैसे कि आप नहावा के बाहर आते हैं कभी कभार तो देखते होंगे कि जो वाटर के काफी ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, बदन पे चिपके रह जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं, वो सिर्फ सरफेस पे रहते हैं. तो सरफेस फेनोमिना जहां होती है उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन, और जहां पे बल्क फेनोमिना होता है उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन. सो द एडजॉर्प्शन ऑफ द गैसेज और स्पेशली हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, द solid solution in which gas is acting as a solute. So this was a brief discussion of the different kind of solution. Friends, एक और चीज आपको बता दें हम, एक चीज हमारे दिमाग में जरूर आनी चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिले तो हमारा बन गया सोल्यूशन. ओके फाइन, लेकिन सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में किस अमाउंट में डालें, हम सॉल्वेंट को कितना लें, सॉल्यूट को कितना लें, और इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, क्या इसका भी कुछ मेजरमेंट का कुछ यूनिट होता है क्या? यहां से बनारस 75 किलोमीटर है, ठीक है, यहां से इलाहाबाद 200 किलोमीटर है, तो किलोमीटर इज अ सर्टेन डिस्टेंस, उसको 200 टाइम्स कर दिए तो हम इलाहाबाद पहुंच गए, 75 टाइम्स कर दिए तो हम बनारस पहुंच गए. तो उसी तरह से क्या इस चीज का भी कोई मेजरमेंट है कि सॉल्यूट को कितना लें, सॉल्वेंट को कितना लें? इस चीज को कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द पर्टिकुलर सॉल्वेंट. तो जो सोल्यूशन बनता है, इस सोल्यूशन के जो मेजरमेंट को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन को मेजरमेंट करने के 5-6 डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और फिर होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन. So these all things we'll discuss in the next lecture. One humble request is, I have already taught you people the mole concept in the last few lectures when I was taking the offline classes in Shafez. So just go through that.